ناظرین، میں اکثر یہ سوچتا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا کہ جو کچھ بھی فلسطین میں دیکھنے کو اس وقت مل رہا ہے اس پر دشمن قوتوں کو عالم اسلام کیا جواب دے اور کس طریقے سے ظلم کے خلاف ایک ہو کر ان کو کڑا جواب دیا جائے۔ پھر قدرت خداوندی دیکھیں کہ میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث مبارک گزری کہ جس نے میرے تمام تر سوالوں کے جواب کو ایک ساتھ دے دیا، جو کہ عالم اسلام کی طرف سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ آج میں وہی جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ وہ جواب اگر عالم اسلام دشمن قوتوں کو دے تو ہم اس کو زیر کرنے کی سکت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اس پر آج کی موضوع گفتگو ہے، اس پر آج اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ کی سپورٹ ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ سو اسٹے ٹیون with us۔ السلام علیکم پاکستان، مہدی حسن حاضر ہے آج کی خبر کے ساتھ۔ ناظرین، یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان یہ چیز ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے اور ماننا کہ رات چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، تنہائی میں آپ کے ساتھ روشنی کو نکلنا ہی ہوتا ہے اور رات کو جانا ہی ہوتا ہے۔ یہ ظلم کی رات جو کہ اس وقت فلسطین، ارض فلسطین کے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہے۔ لیکن ناظرین، میں یہ بات سوچنے پر قاصر تھا کہ اقوام اسلام کیوں خاموش بیٹھے ہیں، فلسطین پر ہو رہے اس ظلم کے خلاف کیوں نہیں لب کشائی کرتے۔ اس کے اوپر مجھے ماضی سے ایک ایسی شخصیت کا نام سامنے آیا کہ جس نے صہیونی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سعودی عرب کے وزیر اعظم شاہ فیصل عبدالعزیز۔ شاہ فیصل عبدالعزیز اور طلحہ بنت عبداللہ شیخ کے بیٹے تھے۔ شاہ فیصل کی پیدائش کے وقت ان کے والد نجد کے امیر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے اور ان کی والدہ کا تعلق الشیخ خاندان سے تھا، جس نے بہت سے ممتاز سعودی مذہبی رہنما پیدا کیے۔ شاہ فیصل اپنے والد کے دور میں ایک بااثر شاہی سیاستدان کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے 1926 سے 1932 تک حجاز کے وائسرائے کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ 1930 سے سعودی وزیر خارجہ اور 1954 سے اپنی وفات تک وزیر اعظم رہے، سوائے 1960 سے 1962 تک دونوں عہدوں پر 2 سال کے وقفے کیے۔ 1953 میں اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے سوتیلے بھائی سعود بادشاہ بنے اور شاہ فیصل ولی عہد بنے، اور اس عہدے پر انہوں نے سعودی عرب میں غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے شاہ سعود کے 1964 میں شاہی خاندان کے دیگر افراد اور سعودی عرب کے مفتی اعظم محمد بن ابراہیم ال شیخ کی مدد سے اپنے حق میں دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ شاہ فیصل نے جدیدیت اور اصلاحات کی پالیسی کو نافذ کیا۔ ان کی خارجہ پالیسی کے اہم موضوعات پان اسلامیزم، اینٹی کمیونزم اور فلسطین نواز تھے۔ انہوں نے اسلامی مذہبی حکام کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل کو مغرب سے ملنے والی امداد کے خلاف احتجاج کیا۔ ناظرین، وزیر خارجہ بننے کے بعد شہزادہ شاہ فیصل کو فلسطینی کاز کی حمایت کے لیے پہچانا گیا۔ فلسطینی کاز کے ساتھ ان کی شمولیت 1938 میں شروع ہوئی، جب انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر لندن کانفرنس میں اپنے والد کی نمائندگی کی، جہاں انہوں نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اہم خطاب کیا۔ ناظرین، انہوں نے 1948 میں سعودی عوام کے نام ایک پیغام لکھا جس میں انہوں نے فلسطینی جدوجہد اور فلسطین کے عوام کے مسائل پر بات کی۔ شاہ فیصل فلسطینیوں کے حقوق کے عالمی وکیل تھے، جس کا
ये सबूत 1963 में अक़वाम मुत्तहिदा में इनकी एक तकरीर से मिलता है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि फ़लस्तीन की तक़सीम की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के बाद से अरब अमन को तबाह किया है। इस मसले पर इनकी पॉलिसियों में से एक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करना, इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए अरब कोशिशों को इकट्ठा करना और वहाँ पर एहतियात करना और लड़ना, फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम का क़याम और मुसलमानों को मकसद के दिफा में शामिल करना था। यहाँ पर सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में शाह फैसल ने कहा, लेकिन आज अरब एक सियासी अक़लियती गिरोह यानी कि सहूनियों की जहारियत को पसपा करना चाहते हैं। ये एक ऐसा गिरोह है जो आलमी यहूदियों की नुमाइंदगी नहीं करता। ये एक ऐसा गिरोह है जो मजहबी से ज़्यादा सियासी है। एक ऐसा गिरोह जिसके तरीके और तरीके नाजियों से मुख्तलिफ नहीं हैं। नाजरीन, मस्जिद अक्सा पर आतिश ज़नी का हमला और 25 सितंबर 1969 के दरमियान फैसल ने रियाद मराकश में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें मस्जिद अक्सा पर होने वाले आतिश ज़नी के हमले पर तबादला ख्याल किया गया, जो एक माह कबल हुआ था। 25 मुस्लिम रियासतों के रहनुमाओं ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस में इसराइल से 1967 में फ़तह की गई सरजमीन तर्क करने का मुतालबा किया गया। कॉन्फ्रेंस ने इस्लामी ताउन की तंजीम भी कायम की और फ़लस्तीनियों की हिमायत का वादा किया। नाजरीन, 1973 की अरब इसराइल जंग शुरू हुई तो शाह फैसल ने आलमी मंडियों से सऊदी तेल वापस ले लिया और 1973 के तेल के बहरान के पीछे बुनियादी क़ुव्वत थी। तनाज़े के दौरान इसराइल की मगरबी हिमायत पर एहतजाज में ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर कनाडा, जापान, नीदरलैंड, बरतानिया और अमरीका पर आयद की गई थी, लेकिन बाद में इसे पुर्तगाल और रोडेशिया और जनूबी अफ्रीका तक बढ़ा दिया गया। तेल की कीमत मार्च 1974 में पाबंदी के ख़ात्मे के बाद तकरीबन $12 फ़ी बैरल, फिर $19 फ़ी बैरल और फिर 75 पर पाबंदी ने तेल के बहरान को झटका दिया, जिसमें आलमी सियासत और मईशत पर बहुत से तवील मुद्दती असरात मुरतब हुए। इसे शाह फैसल के कैरियर की तकरीबन तारीफ़ी अमल के तौर पर समझा जाता। नाजरीन, फिर शाह फैसल ने अपने दुनिया भर में बहुत से अरबों और मुसलमानों में ये तेल दे दिया, वक़ार और बहुत ही पुरवकार तरीके से इज़्ज़त कमाई। नाजरीन, शाह फैसल को टाइम मैगज़ीन का मैन ऑफ द ईयर 1974 नामज़द किया गया था। नाजरीन, फ़लस्तीन की हिमायत में शाह फैसल के किए गए इक़दामात से अमरीका और इसराइल पर इतने गहरे असर पड़ा कि आज भी यरूशलेम में इसराइल ने इनके नाम से एक सड़क मंसूब की हुई है। ये एक बड़ा ही अचंभा मानने वाली बात है और हैरत ज़दा कर देने वाली बात कि दोनों बड़ी ताकतों को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया शाह फैसल जैसी शख्सियत ने। नाजरीन, शाह फैसल जैसी शख्सियत को मार्च 1975 में उनके सौतेले भाई मुसैद बिन अब्दुल अज़ीज़ के बेटे फैसल बिन मुसैद ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। वो अभी अमेरिका से वापस आया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कातिल कौन हो सकता है। शाह फैसल की नमाज जनाजा रियाज की मस्जिद ईद में अदा की गई और इन्हें 26 मार्च 1975 को अल सऊद कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नाजरीन, इस तरह फ़लस्तीन का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ने वाली शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई। सेहूनी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला फ़लस्तीन की हिमायत करने वाली शख्सियत इस दुनिया से ये पैगाम देकर रुखसत हो गई कि ये मिशन आगे जारी रहे, मगर अफसोस सद अफसोस मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर आलम इस्लाम की खामोशी पर मुझे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की एक रिवायत याद आ गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि मैंने भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोबान रज़ी अल्लाह ताला से ये फरमाते हुए सुना है कि सोबान उस वक्त
तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम्हारे खिलाफ दुनिया की कौमें एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे खाने की मेज़ पर दावत दी जाती है। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होने की बिना पर ऐसा होगा? तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वहन क्या चीज़ है? फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और जहाद से नफ़रत। नाज़रीन, इसके बाद अक़वाम इस्लाम की खामोशी ये सोचने पर आमादा कर देती है कि क्या दुनिया की मोहब्बत इस कदर भरती गई है कि जहाज़ से नफ़रत हो गई है। हिज़्बुल्लाह पुकार रहा है, ईरान पुकार रहा है, पाकिस्तान का जवाब भी आ गया। क्या अक़वाम आलम के वो मुसलमान मुल्क जो कि इसराइल को अभी एक माह पहले तस्लीम कर रहे थे और डांस प्रोग्राम्स हो रहे थे, क्या वो इस तरह की गैरत दोबारा से दुनिया को दिखा सकेंगे कि जो इस्लाम का और मुसलमानों का शेवा रहा है इन सहूनी ताकतों के ख़िलाफ़? कि शाह फैसल अभी मरा नहीं, शाह फैसल ज़िंदा है और वो अब भी अमेरिका और इसराइल जैसी रियासतों को मुंह तोड़ जवाब देने की क़ुव्वत और ताकत रखता है। नाज़रीन, जद्दा में एक इस्लामी ताउन तंज़ीम के अरकान की कॉन्फ्रेंस है जिसमें ईरान ने ज़ोर दिया है कि हम तंज़ीम के अरकान की तरफ से इसराइल के मुकम्मल बाइकआउट पर ज़ोर दे रहे हैं, जिसमें इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करना और तेल की पाबंदियाँ फराहम की दस्तावेज़ात और इनके ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी अदालतों में इनकी पैरवी करना शामिल है। नाज़रीन, ये वो चीज़ है जो आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते थे कि अक़वाम आलम में या अक़वाम इस्लाम में आज भी शाह फैसल जैसे लीडर मौजूद हैं जो दुश्मन क़ुव्वतों को मुँह तोड़ जवाब देने की सकत रखते हैं। नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शाह फैसल जैसी मिसाल आज के दौर में भी कायम हो सकती है अगर कोई जुर्रत उस जैसी दिखाए। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेहदी हसन को इजाज़त दें। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।